عید الفطر پر 4 چھٹیاں ملیں گی۔ وفاقی حکومت نے عید الفطر کی 4 روز چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ 9 سے 12 اپریل تک عام تعطیل ہوگی۔ مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل، عید الفطر پر 4 چھٹیاں ملیں گی۔ وفاقی حکومت نے عید الفطر کی 4 روزہ چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے، جو کہ 9 سے 12 اپریل تک عام تعطیل ہوگی، جس کا باقاعدہ مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے، ہمارے نمائندے آزاد نوریو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آزاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وفاقی حکومت نے عید الفطر کی مناسبت سے 4 روزہ چھٹیوں کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ اس کا کیبنٹ سیکرٹری نے باضابطہ طور پر مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے، جس کے تحت جو ہے 9 سے 12 اپریل تک عام تعطیل کا اعلان کیا گیا، یعنی منگل سے جمعے کے روز تک عام تعطیل ہوگی 9 سے 12 اپریل تک، جس حوالے سے تمام تر جو سرکاری نیم سرکاری ادارے بند رہیں گے۔ یہ چھٹیوں کا اعلان جو ہے وزیر اعظم یہاں شہباز شریف کی منظوری کے بعد میں جو ہے باضابطہ طور پر کیبنٹ سیکرٹری نے مراسلہ جاری کر دیا ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ 4 روزہ جو چھٹیوں کا باضابطہ طور پر سرکار نے اعلان کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آزاد نوریو اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ۔ مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اچھی خبر، ہول سیل مارکیٹ میں 2.5 نمبر آٹے کی قیمت میں 4 روپے کلو کمی ہو گئی ہے، جس کے بعد نئی قیمت 106 روپے کلو ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں کاوش میمن سے۔ جی کاوش، کیا وجہ ہے آٹا سرکاری نرخ سے سستا کیسے فروخت ہو رہا ہے؟ بالکل، دیکھیں اشیاء کرونوز کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے عوام شدید پریشان ہو رہی ہے۔ تازہ ہوا کا جھونکا ہے کیونکہ آٹے کی قیمت میں جو کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبداللہ ابراہیم نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ ہول سیل کی سطح پر 2.5 نمبر آٹا جو ہے وہ 4 روپے کلو سستا ہوا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 106 روپے ہو گئی ہے۔ بات کی جائے کمشنر کراچی کے سرکاری نرخ نامے کی، تو اس میں قیمت 123 روپے مقرر ہے، یعنی کہ سرکاری نرخ سے بھی 17 روپے کلو جو آٹا جو ہے وہ اس وقت شہریوں کو ہول سیل کی سطح پر سستا مل رہا ہے۔ اب اس حوالے سے جو ہول سیلر گروسرز کی ایسوسی ایشن ہے، مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو کمشنر کراچی کی ریٹ لسٹ ہے اس کو ریوائز کیا جائے اور نیا سرکاری نرخ نامہ جاری کیا جائے، تاکہ سرکاری سطح پر جو قیمتیں ہیں اس پر عمل درآمد بھی ہو سکے اور جو ناجائز منافع خور ہیں ان کو لگام ڈالی جا سکے۔ اور جو کمی کی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ فلور ملز میں جو ہے وہ امپورٹڈ گندم آنے کے بعد جو وہ اب آٹے کی قیمت میں کمی کی ہے، جس کا ریلیف اب ہول سیل کی سطح پر عوام کو ملنا شروع ہو چکا ہے۔ کاوش میمن ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ سندھ کابینہ نے تمام محکموں میں بھرتیوں پر عائد پابندی ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر قانون اور ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ عدالتوں میں بھرتیوں پر پابندی کو ختم کروائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس۔ سندھ کابینہ نے تمام محکموں میں بھرتیوں پر پابندی عائد ختم کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر قانون اور ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایت کی کہ وہ عدالتوں میں بھرتیوں پر پابندی کو ختم کروائیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عاجز جمالی سے۔ جی عاجز، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، یہ سندھ کابینہ کا اجلاس ابھی تک وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ صوبائی کابینہ کے ارکان، مشیر اور متعلقہ محکموں کے سرکاری افسران موجود ہیں۔ چیف سیکریٹری سندھ نے کابینہ کو ایک بریفنگ دی ہے۔ ایک اہم بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اگست 2023 سندھ حکومت نے سرکاری ملازمتوں پر پابندی لگا دی تھی، پابندی عائد کر دی گئی تھی، وہ پابندی آج ہٹا لی گئی ہے۔ سندھ کابینہ نے تمام سرکاری ملازمتوں پر ختم کیے اور بہت سارے ملازمتوں پہ بھرتیوں کے جو مقدمات چل رہے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ عدالتوں میں مقدمات کو ختم کروائیں تاکہ تمام محکموں میں بھرتیاں شروع کی جائیں۔ سب سے اہم جو محکمہ ہے وہ محکمہ تعلیم ہے۔ محکمہ تعلیم نے آئی بی اے کے ذریعے 2 فیزز میں ملازمتوں پر بھرتی کی تھی۔ اب تیسرے فیز میں دوبارہ سے محکمہ تعلیم نے عید الفطر کے بعد سندھ میں اساتذہ کی بھرتیوں کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بھرتیاں جو ہیں آئی بی اے ٹیسٹ پاس کرنے والے اساتذہ کی ہوں گی۔ تو اس طرح دوسرا جو ایجنڈا تھا واٹر کارپوریشن کا تھا، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا، جس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے سندھ کابینہ میں کہ ورلڈ بینک کی وجہ سے جو اصلاحات کا پروگرام ہے
कराची वाटर बोर्ड में। उसके लिए सिंध हुकूमत को जो रकम देनी थी, इसमें 2-3 कंपोनेंट हैं। इसमें एक कंपोनेंट सिंध हुकूमत की थी, तो सिंध हुकूमत को जो रकम अदा करनी है, सिंध काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है। बाकी रकम वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारे अदा करेंगे, तो इस पे भी काम शुरू हो जाएगा। काबीना के एजेंडा पे मुख्तलिफ वीसीज के लिए गाड़ियों की ख़रीदारी की मंजूरी देनी है। सिंध काबीना में मुख्तलिफ जो फैसले हैं मुख्तलिफ महकमों के हवाले से उसकी मंजूरी देनी है। काबीना का इजलास अभी तक आला सिंध की ज़ेर सदारत जारी है। जी अच्छा, आज दूसरी जानिब हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के वफ़द की अहम मुलाकात हुई है। अच्छा, मुलाकात में 13 मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया है। वो 13 मंसूबे कौन कौन से हैं? जी, बड़ा तवील इजलास हुआ है वर्ल्ड बैंक का सिंध काबीना के साथ। इसी वजह से सिंध काबीना के इजलास में भी ताख़ीर हुई है। सिंध काबीना का इजलास 12 बजे होना था, जो अब 3 बजे जाके शुरू हुआ है। वर्ल्ड बैंक का कंट्री डायरेक्टर भी इसमें शरीक था। वर्ल्ड बैंक का पूरा डेलीगेट इसमें पानी और खुराक और ज़राअत, इन तमाम महकमों के मनसूबा जात सूबा सिंध के मुख्तलिफ अजला में जारी हैं। वर्ल्ड बैंक के ज़ेर एहतमाम कराची में नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत भी मंसूबे जो हैं वो जारी हैं, और वर्ल्ड बैंक के तहत सिंध के सैलाब मुतासरीन की बहाली का जो मंसूबा है वो भी जारी है। तो इन तमाम मंसूबों पे आज बड़ी एक तफसीली मीटिंग हुई है। सिंध के मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज़ ने वर्ल्ड बैंक के इस मिशन को ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आला सिंध ने ब्रीफिंग दी है और वर्ल्ड बैंक ने मुतमईन होने की कोशिश की इन तमाम महकमों पे, और एक एक महकमे और एक एक मंसूबे पर बड़ी तफसीली ब्रीफिंग ली। इस इजलास के बाद सिंध काबीना का इजलास हुआ, जो अभी तक जारी है, और सिंध काबीना के इजलास में भी वर्ल्ड बैंक के साथ होने वाली मीटिंग रिव्यू पेश किया जाएगा और उन मंसूबों पे कोई हिकमत अमली तय की जाएगी। जी ठीक है, आज जमाली अपडेट करते, बहुत शुक्रिया। बराह रास्त ये चलते हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। सेक्रेटरी हैदर हुसैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंतजामिया की गफलत के बाद कोरंगी सेक्टर 32 में सीवरेज का निज़ाम तबाह हो गया। पूरे इलाके में गंदे पानी ने मकीनों के लिए आमदोरफ्त मुश्किल बना दी। इलाका मकीन कहते हैं गंदगी ने जिंदगी अजीरन कर दी है। इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मजीद बताएंगे मीर किरियो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके कोरंगी में। कोरंगी का 32 नंबर है, जहाँ पर कई महीनों से जो सीवरेज का निज़ाम दरअम्बर में पूरी जो सड़क है वो ज़ेर आब आ चुकी है। लाइनें टूट फूट का शिकार है, गटर नाले खुले हुए हैं। यहाँ पर जो शहरी गुजरते हैं, गाड़ियाँ गुजरती हैं, वो काफ़ी मुतासर होती हैं। जो कारोबार है शहरियों का वो भी काफ़ी मुतासर हो रहा है। इस वक्त इस इलाके के रिहायशी हमारे साथ मौजूद, हम उनसे पूछेंगे सर कब से इस इलाके की हालत है और क्या कोई इकदाम उठाए गए, क्या देख रहे हैं इस चीज़ को? यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ दिखावा हो रहा है। 3 महीने से सिर्फ यही सिलसिला चल रहा है कि लोग आते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं, चले आते हैं, काम नहीं हो रहा, सिर्फ सेल्फियाँ बनवाते हैं। आते हैं, गाड़ी में उतरते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं, चले आते हैं। सिर्फ गरीबों का मजाक उड़ाया यार और अपनी जेबें भरे जा रही हैं, बस। सही है जी बिल्कुल। यहाँ जो मकामी इंतजामिया आती है, नुमाइंदे आती है, वो सिर्फ वीडियो बनाते हैं, तस्वीर बनाकर चले जाते हैं, लेकिन काम नहीं होता। का मुतालबा है कि जो यहाँ से इंतखाबात जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनको चाहिए कि इस सड़क पर तवज्जो दी जाए, सीवरेज का निज़ाम ठीक करवाया जाए और कोरंगी 32 नंबर में जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो उसको ख़त्म किया जाए। जी जमीला पंपिंग स्टेशन की बंदिश से तबाहकारियों का सिलसिला जारी। रनछोड़ लेन में सूरत हाल बदतरीन हो गई। गंदे पानी के बायस गेट वाली मस्जिद को बंद कर दिया गया है। तफसीलात बताएंगे एहसन अब्बासी। गार्डन के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, शू मार्केट में, और सूरत हाल इंतहाई संगीन है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक वाहिद मस्जिद है जिसका रास्ता ही सीवरेज के निज़ाम के बाइस जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। ये गेट वाली मस्जिद है और UC4B की हुदूद है, और ये मस्जिद का रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। नमाजी जो है वो नमाज पढ़ने के लिए रमजान मुबारक के महीने में इबादत करने के लिए मस्जिद नहीं जा सकते। अंदर मौजूद
रिहायशी प्लाजा है, दुकानें हैं, कारोबारी मराकज़ हैं, तमाम की गुजरगाह जो है वो मुकम्मल तौर पे सीवरेज के भरे हुए निज़ाम के बाइस जो है वो बोसीदा लाइनों के बाइस ये तमाम सूरत हाल आप देख सकते हैं कि बर्बाद हो चुकी है, गुजरगाहें जो है वो तबाह हो चुकी है, इलाका मकीन जो है वो परेशान है, किसी तरह से जो है वो सूरत हाल कंट्रोल में आ जाए। क्या शहरी हमारे साथ मौजूद है, भाई से बात करते हैं। भाई मुझे बताइएगा ये कब से सूरत हाल है इसकी? भाईजान ये रमजान से पहले की है, ठीक है। हम बुला के चिल्ला के थक गए कि अल्लाह के वास्ते ये मसले का हल कर दो। खुदा का खौफ ही नहीं है, रमजान का महीना है, ना खुद रोजे रखते ना दूसरों को रखने देते। हम खुद नमाज नहीं पढ़ते तो भाई कम से कम दूसरे नमाजियों को तो पढ़ने दें। अब उनके लिए तो देखें, कम से कम अल्लाह की रजा के लिए कुछ तो थोड़ा बहुत मसले का हल करें। अब हालत तो देखो, ना हम जा सकते हैं ना आ सकते हैं। नमाजी इस गटर के अंदर जाके नमाज पढ़ सकता है? आप देखें तो खाली कदम रखेगा इससे नमक कपड़े नापाक हो गए। नादिन बदबू इतनी है, बीमारियां फैल रही हैं, सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है ओल्ड सिटी एरिया गार्डन के इलाके की कि गुजरने वाले जो है वो नाक पे उंगली रख के गुजरने पर मजबूर हैं। जी नाजिमाबाद नंबर 3 में सीवरेज का नाकारा निज़ाम आवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है। यूसी नंबर 2 का भी इलाका कई रोज से गंदे पानी में डूबा हुआ है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन से नकासी आपका निजाम संभलने का नाम नहीं ले रहा। नाज़िमाबाद नंबर 3 की गलियां भी गंदे पानी में डूब गईं। यूसी नंबर 2 के अकब में वाइस चेयरमैन की रिहाइशगाह के अतराफ की गलियां सीवरेज के पानी में कई रोज से भरी हुई हैं। एक हफ्ते से ये सूरत हाल है और यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो गया, कारोबार करना हमारे लिए बड़ा दुश्वार हो गया। आने जाने में बड़ी तंगी होती है, लोगों को नमाज के लिए जाने में भी बड़ी परेशानी है। यूसी ऑफिस तो करीब ही है, सामने वाइस चेयरमैन का घर भी है और ये कोई सुनवाई नहीं है इस इलाके में। ऐसा लगता है जैसे लावारिस शहर है ये इलाका नाज़िमाबाद। शहरियों का कहना है कि आमदोरफ्त महाल है, रमजान में इबादत मुतासिर हो रही है। ताफुन इस कदर है कि घरों में बदबू आ रही है। आने जाने में बहुत मसला है, बच्चों की स्कूलिंग का इशू है। सुबह जाओ तो यहाँ पे गटर का सारा पानी बह रहा है, वहाँ से आओ स्कूल से लेके फिर घर जाने का मसला है। लेडीज़ के लिए बहुत मसला है, बदबू बहुत है, घर में रहा नहीं जाता। जब नीचे इतनी बू है तो आप सोचें घर में क्या हाल होता है। सीवरेज के मुसलसल उबलते गंदे पानी से सड़कें और गलियों में घड़े पड़ गए, जिससे आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ती जा रही है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।